Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and the predictions for the month of April 2023. For Virgo Ascendant people, the Ascendant Lord Mercury is going to enter into the 8th house on 31st of March and it is going to stay here till 7th of June. Now the Ascendant Lord in 8th house is not considered a good position because it brings a lot of mental stress and pain to an individual. This position also indicates the family members of your spouse because you see your spouse from the seventh house and her family is indicated from the second house to the seventh. So eighth house is also responsible for creating problems with your in-laws. During the time frame of April, you are going to get an opportunity to connect with your in-laws in on a social occasion, but you need to be careful in terms of what you speak to them and in what manner because this may lead to conflict with your family members of your spouse. From 21st of April to 14th of May, this ascendant Lord Mercury is going to become retro and you will see your problems easing out a little bit during this time frame, but overall the time frame from 31st of March to 7th of June will remain a bit difficult to tackle. Now Venus is passing through the ninth house and it is going to be here from 6th of April to 1st of May. Venus is also the lord of self-earned wealth, which is the second house, and it is going to be in its own sign. And the house also is very favorable, which is the house of fortune. So the month of April will be very good from the financial perspective, and the best time is going to be in the middle of the month from 16th of April to 26th of April. Saturn is the lord of fifth house that indicates education, speculation, and things that are related to creativity. Saturn is also the lord of the sixth house, which indicates service or jobs. So, all those people who are in the jobs, the relatively better time frame in April will be from 3rd to 5th of April. If you're a student or a person who deals in speculative market, then 6th to 8th of April is going to be a good time for you. Mars is stationed in the 10th house for you and it is exchanging places with Mercury. So Mercury is going to be stationed in the sign of Mars and Mars is going to be stationed in the sign of Mercury. Now, whenever two planets exchange signs, they provide good results for each other's houses. But in this case, one of the houses involved is the eighth house. So instead of getting good results, you will see that you are experiencing pain because of the problems that are coming in your profession, and most of these problems will stem from the heat that you are going to get from your superiors or people in the upper echelons of the hierarchy. This exchange will also turn out to be good for some of the people if you are in a profession that is related to eighth house. So if you work in the areas that are related to research, insurance, taxation, surgery, manufacturing, mining, or any kind of a technical line of work, then professionally this month will turn out to be a good time for you. But all those people who are not in these jobs, they will see stress coming on the job front in the month of April. Now, there are also certain dates where you need to be cautious and you should avoid taking any key decisions. So, for you, the days you need to remain cautious are 2nd and 3rd of April, 16th and 17th of April, and 20th and 21st of April. Avoid taking any key decisions during these 6 days. Overall, this time frame of 31st of March to 7th of June is going to be a bit challenging for the Virgo ascendant people, and this position of the ascendant lord in the 8th house would mean that they will experience some kind of a mental stress and pain during this point of time. So that's the summary for you for this month. Thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे साबित होगा। देखिए, अगर आप सबसे पहले लग्नेश की बात करें तो लग्नेश बुध अष्टम भाव में 31 मार्च को प्रवेश कर गए हैं, जहां पर कि ये 7 जून तक बैठे रहेंगे। तो जब भी लग्नेश अष्टम भाव से गुजरता है
तो व्यक्ति को काफ़ी मानसिक पीड़ा या तकलीफें होती हैं। तो यहाँ पर बुध मंगल की राशि में से भ्रमण करेंगे और बुध और मंगल की आपस में बनती नहीं है, दोनों दुश्मन हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में मंगल और बुध का स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। मंगल बुध की राशि में बैठे हैं और बुध मंगल की राशि में बैठे हैं। चूंकि इस तरह के जो भी एक्सचेंज होते हैं वो आमतौर पर अच्छे कहलाते हैं अगर दोनों भाव अच्छे हों तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक अष्टम भाव है और जो कि एक खराब भाव है, तो जब दशमेश का अष्टम से भ्रमण हो रहा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ों से उसको तकलीफ होगी इस समय में। और उसकी वजह से खास करके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं यानी बॉसेस हो गए या जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी वजह से ये तकलीफ आती हुई उन्हें ज़्यादा महसूस होगी। इसके अलावा अगर आप अष्टम भाव से जुड़े हुए ही व्यवसाय में हैं यानी आप रिसर्च में हैं या फिर आप इंश्योरेंस, टैक्सेशन, सर्जरी, माइनिंग या कोई भी तकनीकी काम करते हैं तो ये फिर महीना आपके लिए प्रोफेशन के तौर पर अच्छा हो रहेगा, क्योंकि आप अष्टम भाव की नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे इस समय में। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी सारे प्रोफेशंस में हैं तो उनके लिए फिर ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग ही रहेगा, प्रोफेशन की दृष्टि से भी काफ़ी पेन होगा उनको इस समय में। अगर बाकी ग्रहों पर नजर डालें तो शुक्र अपने ही भाव में बैठे रहेंगे, नवे भाव में। शुक्र यहाँ पे 6 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और 1 मई तक यहीं बैठे रहेंगे। शुक्र आपके लिए स्व कष्ट से अर्जित किया हुआ धन दिखाते हैं, तो यहाँ पर कैश फ्लो या फाइनेंस के हिसाब से अप्रैल के महीने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो द्वितीय का भाग्य स्थान में जाना और वो भी अपनी राशि में बहुत अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस की दृष्टि से सबसे अच्छे दिन रहेंगे अप्रैल में, तो महीने के मध्य में यानी कि 16 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक का समय आपके लिए पैसे के लिहाज से सबसे अच्छा समय रहेगा। शनि आपके पंचम और छठवें भाव के स्वामी बनते हैं, तो पंचम भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती हैं यानी कि शिक्षा, आपकी संतति, शेयर बाजार में सफल होने की संभावना और क्रिएटिव काम से जुड़ी हुई चीजें, ये सब के सब आपके रूलर शनि हैं। और शनि आपके जॉब और सर्विस के भी रूलर बनते हैं। तो जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय 3 से 5 अप्रैल तक का रहेगा। अगर आप छात्र हैं या फिर आप अगर स्पेक्यूलेशन में भी डील करते हैं तो दोनों ही लोगों के लिए 6, 7 और 8 अप्रैल सबसे अच्छे दिन रहेंगे अप्रैल के महीने में। जैसा मैंने पहले कहा था कि मंगल 10वें भाव में बैठे रहेंगे और मंगल यहाँ पर दिग्बली बनते हैं। यहाँ पे वैसे पोजीशन बहुत अच्छी कहलाती है मंगल का दशम भाव में होना, क्योंकि व्यक्ति को काफ़ी एनर्जेटिक बनाते हैं अपने प्रोफेशनल स्पेस में। ये लोग अपने कार्यस्थल पर इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिसकी वजह से इनको काफ़ी विजिबिलिटी मिलती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि 10वें और 8वें भाव का स्वामियों का आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों को बॉसेस या अपर मैनेजमेंट के लोगों से झगड़ा करने से बचना है इस समय में, क्योंकि ये वाद विवाद फिर उनके लिए काफी भारी पड़ेगा। इसीलिए कार्यस्थल पे अप्रैल के महीने में वाद विवाद टालना ही सबसे अच्छा रहेगा। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6 और 12 भावों से निकलता है। तो आपके लग्न के लिए अप्रैल के महीने में जो दिन आपको सावधान रहना चाहिए वो है 2 और 3 अप्रैल, 16 और 17 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल। इन 6 दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। ओवरऑल आप अगर देखें तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना अपने आप में एक समस्या होती है और हर साल हर तरह का लग्न का व्यक्ति इस तरह की समस्याएं झेलता है। कुछ टाइम पीरियड लोगों का हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। तो अगर आप इस समय में अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने कार्यस्थल पे कर लेते हैं, यानी अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस समय में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन बाकी लोगों को ये चैलेंजिंग समय से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।